press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सहारन को, जिन्होंने पाकिस्तान में बैठ के बहुत ही जबरदस्त और दमदार इंटरव्यू दिया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से इंपॉर्टेंट, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद। एक मसला हमारा ये भी है कि हम 25 करोड़ का मुल्क है। मैं कई दफ़ा अपने शो में भी ये बात कर चुका हूँ कि एक एकेडमिक एक्सपर्ट हमारे पास नहीं है इंडिया का। हमारे एक टीवी शो में एक सीनियर जर्नलिस्ट है हारून रशीद, वो कह रहे थे कि जी इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। तो उनके जो साथी थे ना, उन्होंने बड़ा डरते डरते कहा सर 40 ज़िले होंगे। कहते नहीं नहीं, मेरा होमवर्क इतना भी ख़राब नहीं है। और उस वक्त 29 स्टेट्स थी इंडिया में, 28 हैं, अब 28 हैं। कश्मीर की जो है उन्होंने स्टेट का ख़त्म किया। तो अब मेरा ख्याल हम ओपन करते हैं जी। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई योर सेल्फ, और जब माइक आपके पास आ जाए तो ब्रीफ क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज़। So welcome to Pakistan. I would like to say that I would have loved to hear that this mentality, the people we have talked about recently, this is on the same side, matlab, not only here, but there as well. And the second thing, it is emotionally understandable for a person like me or everyone sitting here who is like a bit intellectually aware of things. But what about the people who are not very much aware and like they जो गांव के लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, how would they understand that we should live peacefully? Like what would be the reality based strategy to achieve peace rather than these emotional statements? इससे पहले भी आप कुछ कह रहे थे, if you could say that. Yes, as well. exactly. Like I was saying that it is not from One your- side. Exactly. Like it felt like that this is mostly on Pakistan, but it is also on the same side. On that side, there are also issues. But like the Champions Trophy happening, Okay. it's like the political things, everything, and even Indian lectures are not available for Pakistani students. If we want to access Indian lectures, we have to use VPN and these kind of things. So Sorry, I'm failing to understand your question. So what you're saying is that Pakistan is not to be blamed on its own. Indians are also equally responsible for spreading this hatred. Am I understanding you right? Exactly. Like it's from the same both sides. Okay. Not only from Pakistan. Yeah. Well, let me tell you, I don't think the majority of Indians or Pakistanis hate each other. Your perceptions are truly based on the mainstream media on both sides, maybe some newspapers, or maybe you watch certain individuals who are propagating hatred on both sides. The common man in India or Pakistan is struggling to make the ends meet. They are struggling for their bread and butter. Nobody has that much time. And let's face facts. I've been here for almost a week now. I've met with countless Pakistanis, not encountered a single person so far who hates India. एक छोटा सा एग्जाम्पल उर्दू में दे दूं ताकि बात थोड़ी दूर तक चली जाए। यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए बेरा इंटरचेंज पे I wanted to try KFC just to see the difference, between here and the KFC in India and in New Zealand and some other places. So I was looking at the menu. मैं जब मेन्यू को देख रहा था तो वो जो शख्स जो था काउंटर पे, वो मुझे देख रहा है कि भाई इतना छोटा सा मेन्यू है, देखने वाला क्या है, ये बंदा यहाँ का नहीं लगता है, ही इज़ नॉट फ्रॉम हेयर। सो उसने मुझसे पूछा सर क्या देख रहे हैं, आपको आप लगता है पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे। मैंने कहा हाँ जी पहली दफ़ा आया हूँ। तो कहते हैं यहाँ के तो नहीं है, फिर आपको तो पता होना चाहिए था हमारे मेन्यू में क्या है, लोग इतना टाइम नहीं लगाते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो कहते हैं अच्छा तो आप फिर इंडिया से आए हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? वो कहते जी हाँ ये ज़बान तो फिर यहाँ कोई नहीं बोलता, इधर चीन है, पीछे अफगानिस्तान, इस साइड में ईरान। मैंने कहा जी मैं इंडिया से आया हूँ। सो हिज रिस्पॉन्स वॉज आप बैठें प्लीज, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके लिए जो भी अच्छा है यहाँ पे सारा लेकर आते हैं। तो ये है वो मेंटेलिटी कॉमन मासेस की। मिठू नाम का एक शख्स मुझे मिला, किसान है यहाँ पे, मैं जिनके यहाँ पे रुका हुआ था लाहौर में, उनके खेतों में काम करता है। तो मैंने पूछा मिठू
कैसी गुजर रही है, खेती बाड़ी कैसी है? तो उसने कहा बहुत मुश्किल है सर, डीएपी जो खाद है 14,000 की हो गई है। मेरा रिस्पॉन्स था कि हमारे यहां तो 1,350 रुपये का बैग मिलता है, अगर आप करेंसी का जो डिफरेंस है वो भी ले लें तो 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 14,000। तो सर मसला जो है वो मिट्ठू जैसे लोगों का है, मसला रोजी रोटी का है, मसला जो है वो नहीं है जो आप और मैं 24 घंटे मीडिया में या कहीं और देख रहे हैं। मसला वो है गरीब आदमी का। अब आप देख लें, आप में से अगर कोई नफरत करने वाला हो मुझसे तो हाथ खड़ा करे जी, मेरा नहीं ख्याल कोई मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान गए हैं तो बहुत आपको मोहब्बत मिली। हाँ, मैं ये भी कह दूं कि ऐसे लोग हैं, लेकिन इंसान की जो अप्रोच है वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए। आप अच्छे हैं तो जग अच्छा है। थैंक यू। So can you ask the question? Like just a short question that I would like to ask, like for everyone who's watching, like why would you believe that if partition wouldn't have happened, things would have gone nicely? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वेल देखें, मैं ये हरगिज नहीं कहता कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी ऑन बिहाफ ऑफ सो मेनी पीपल। मेरी जाती राय हो सकती है, इट इज़ पर्सनली मे बी एन इमोशनल थिंग फॉर मी कि मैं ये कहूँ कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो जी आखिर कौम के जो बड़े हैं उनका फैसला था। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान बन गया है, इट इज़ अ रियलिटी, लेट्स फेस फैक्ट्स। ग्लोबल मैप पे है, इट हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और शायद आप सबको सुनने में अच्छा लगे, मालिक कायनात पाकिस्तान को भाग लगाए, मैं तो यही चाहूँगा। ठीक है जी, तो मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए था। हाँ, जिस तरह से हुआ वो नहीं होना चाहिए था। घर में लोग अलायदगी इख्तियार करते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम कत्लो गारत करके और अपने अपने रास्ते पे जाएं, वो ठीक नहीं था। बाकी ये है कि मॉडर्न नेशन स्टेट्स में से नई नई स्टेट्स रोज बनते हुए हम देख रहे हैं। तो जो बात मैंने पहले कही कि कल्चरल सेंस में पार्टीशन को अंडू करने की जरूरत है, नॉट इन द पॉलिटिकल सेंस, इन सोशल सेंस, इन इकोनॉमिक सेंस, कि अगर हमारे यहाँ से सब्जियां सस्ती मिल रही हैं आपको, तो भाई उनको दुबई से ला के और फिर आप यहाँ पे वही चीज इतनी महंगी हो जाती है। वो एंड यूजर जो है उसके बारे में ख्याल रखें, वो एक गरीब तरीन शख्स है जो चीज आपको 25 रुपए में मिल सकती है उसके आप 150 रुपए क्यों दें? इतनी सेंसेस, इतनी उम्मीद रखना अपने हुक्मरानों से, इज दैट टू मच? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। तो ट्रेड होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्शंस होने चाहिए, वीजा पॉलिसी थोड़ी रिलैक्स हो। साख हमारे दरमियान एक बहुत अच्छा मॉडल है, इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी उसी में लाई करती है। हमने हाईजैक किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी ने उस पूरे फोरम को, सो वी आवरसेल्व्स आर टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मेरे ख्याल से यहां बैठ के अगर मैं अपना क्रिटिकल एनालिसिस करूं एज एन इंडियन, तो वो ज्यादा बेहतर होगा मोर देन द पाकिस्तानीज। हम अपनी बात करें, हमारे अंदर कोई कोताही है तो उसको दूर करें, आप अपनी तरफ देखें। एक दूसरे पर तो कीचड़ उछालने के लिए सियासतदान ही बहुत हैं जी। अच्छा, पार्टीशन पे मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूं, पहले ये था कि जी पाकिस्तानी ये कहते थे जी हमने हिंदुओं से भी लड़के आज़ादी ली और अंग्रेज़ों से भी लड़के ली। अब जो है एक ऐसी स्ट्रेन पैदा हो गई है, आयशा जलाल जिसकी बड़ी चैंपियन है, कि जी जिन्ना साहब तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, वो तो नेहरू ने पार्टीशन इम्पोज की, वो पटेल ने की। तो एक ये भी है, बहुत सारे लोग फेसबुक पे मुझे ये कहते हैं कि जिन्ना साहब ने तो कैबिनेट मिशन प्लान मान लिया था। ये अलग बात कि किस तरह माना था, उसमें मानते वक्त भी ये कह दिया था कि पाकिस्तान रिमेन्स आवर अनअल्टरेबल गोल। एब्सोल्युटली। तो ये भी है, और फिर ये भी चीज़ है कि पटेल एक्चुअली प्रिवेल्ड ऑन गांधी एंड नेहरू कि जी पार्टीशन जो है ना ज़रूरी है अब। और ये जो सेपरेटिज्म का जरासीम है, जो जर्म्स हैं, वो इतने फैल गए हैं मुसलमानों में, अब अगर हम इनको इकट्ठा रखेंगे तो ये नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली सरदार शौकत हयात हिमसेल्फ टोल्ड मी। जी 14 जून 1947 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सेशन जो है उसमें सरदार पटेल का जो एड्रेस है वो बड़ा नोट करने वाला है। वो आई डोंट रिमेंबर द एंटायर, मैं यहाँ पे पढ़ के सुना सकता था, बट उस ऑल एंड ऑल वो यही कहते हैं कि मेरे जो 9 महीने रहे हैं ऑफिस में, उसमें मैं इतना मुतमईन हो चुका हूँ कि
मुस्लिम लीग के लिए जो मुस्लिम ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम वो सारे काम कर रहे हैं। और लेट्स फेस फैक्ट्स कि एक पाकिस्तान हमारे दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है पंजाब और बंगाल में। सो हमें चाहिए कि हम इस पार्टीशन को एक्सेप्ट करें and we will be responsible for the development prosperity of almost 75% India and the Muslim League will be responsible for the rest along these lines उन्होंने बात की थी। तो हाँ ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से। अब हमें इस हिस्ट्री में अब नए रेफरेंस पॉइंट्स ढूंढने की जरूरत है। आई थिंक पार्टीशन सब्सिक्वेंट जो वॉर्स हुए हैं उसके बाद जो कुछ हुआ है, फिर अभी रिसेंट टाइम्स में 5 अगस्त 2019, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमें नए रेफरेंस पॉइंट्स लाने होंगे, तभी शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। नैरेटिव आप जैसे लोग जो हैं इस मुल्क में, एक चीज मैंने और देखी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोई वर्ड्स यूज होते हैं तो इधर पढ़े लिखे लोग कहते हैं नैरेटिव। हर कोई मुझसे पूछ रहा है आपका नैरेटिव क्या है, आपका बयानिया क्या है। तो ये बयानिया और नैरेटिव के अंदर ही पूरी कौम फंसी पड़ी है। तो वो आप ही ने सेट करना है कि अब आपका बयानिया क्या होना चाहिए। इंडिया ने जो किया सो किया। एक थोड़ी सी वो इकबाल ने जो बात कही थी कि जी कि इस खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन लें। तो बात ये है सर कि 5 अगस्त 2019 को एक जो कुछ भी हमने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 की शक्ल में, आपकी मिलिट्री क़यादत का एक बयान है उस पर कि हमने तो कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या आर्टिकल 370 को माना ही नहीं, मेक्स नो डिफरेंस टू अस। लेकिन सिविलियन जो आपकी क़यादत है वो कह रही है कि जब तक आप उस पर वापस नहीं जाते तब तक हमारे दरमियान कुछ आगे हो नहीं सकता। तो इससे होता ये है कि एक क्लैरिटी नहीं मिलती एज अ स्टेट, हम किसको देखें, किसकी तरफ देखें कि कौन क्या कह रहा है। और अपने आप को बंद गली में नहीं धकेलना चाहिए। वन शुड लीव सम रूम फॉर सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन, ताकि वहां से कोई बात हो। अब देखें जो 1949 में भी कराची एग्रीमेंट हुआ था, आपने भी तो वो तशख्खुस है कश्मीर का, वो चेंज कर दिया था कराची एग्रीमेंट में जब जीबी और आपकी तरफ का जो कश्मीर है वो अलायदगी उसमें हुई, तो इंडिया ने कर दिया अपनी तरफ। फैक्ट रिमेन्स कि वो हिस्सा इंडिया के पास रहा है और ये हिस्सा आपके पास रहा है। मैं ये कहता हूं कि ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं ये बड़े लोगों पे छोड़ दें। हमारे जैसे लोगों को ये देखना चाहिए कि आम आवाम का मुफाद जिस चीज में है उस पर बात की जाए। शुक्रिया दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अरविंद सारन का ये दमदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जो कि उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के दिया और बंटवारे की बात की। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।